ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، فرمایا کہ تمہارے لیے روزہ رکھنا ہی بہتر عمل ہے۔ روزہ ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے، اس پر اسلام کی عمارت قائم ہے۔ لغوی معنی کی روح سے صوم کا مفہوم یہ ہے کسی چیز سے مطلق رک جانا ہے اور کسی چیز سے باز رہنا ہے۔ شرعی اعتبار سے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ آج کے موضوع میں ہم بنیادی طور پر عمل صوم کی عقلی حکمتوں کو بیان کریں گے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ روزہ اہل ایمان کے پاس اللہ کی ایک امانت ہے۔ اس امانت صوم کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ کی رضا کی خاطر کھانے پینے سے اور دیگر نفسانی خواہشات سے خود کو روک لے، ہر تکلیف اور مصیبت کو اور اذیت کو برداشت کرے، تھکاوٹ اور تنگی کو اپنے وجود میں محسوس کرتے ہوئے صبر کرے، اور ایسی بھوک جو نڈال کر دینے والی اور کمزور کر دینے والی ہے، ایسی پیاس جو نڈال کرنے والی اور انسان کو ضعف کا شکار کرنے والی ہے، ان سب چیزوں کو وہ اللہ کی خاطر برداشت کرے۔ تو حاضرین گرامی قدر، اس امانت صوم کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس نفس کے ورغلانے میں نہ آئے۔ یہ نفس بھوک اور پیاس کو جب برداشت نہیں کرتا تو مختلف توجیہات اور تعلیلات کے ذریعے انسان کو متزلزل کرتا ہے۔ کبھی کہتا ہے یہی نفس کہ کوئی آنکھ تمہیں دیکھ نہیں رہی، کوئی وجود تمہارے اوپر نگران نہیں، ظاہری اسباب کی دنیا میں کوئی رکاوٹ تمہارے عمل عقل و شرب میں حائل نہیں، مکمل رازداری اور حفاظت کاری ہے، اس لیے آگے بڑھو، کھاؤ پیو، تمہارے اوپر کوئی نگران نہیں ہے۔ نفس اپنی اطاعت کے لیے مسلسل ابھارتا رہتا ہے تاکہ امانت صوم سے بندہ پیچھے ہٹ جائے، اس امانت میں خیانت کا مرتکب ہو جائے۔ اس صورتحال میں روزہ یہاں ڈھال بن کر بندے کے کردار کو مضبوط کرتا ہے۔ یہی کردار کا استحکام ہی اسے دنیا و آخرت میں سرخرو کرتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، انسان اپنے اندر حیوانی خصوصیات بھی رکھتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی خلق اور مخلوقات کا ایک عام فرد ہے۔ اس میں اور دوسرے حیوانوں میں فرق یہ ہے کہ یہ عقل و شعور رکھتا ہے، اس لیے اہل فلسفہ و منطق اس انسان کو حیوان ناطق قرار دیتے ہیں۔ یہ انسان بھی طبعی طور پر کھانے پینے اور جنسی تسکین کی طرف میلان و رغبت رکھتا ہے۔ حالت صوم میں جب یہ اپنے حیوانی نفس کی لذتوں کو از خود روک لیتا ہے اور ان پر ضبط کے پہرے بٹھا لیتا ہے تو یہ عمل صوم انسان کے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، اس کی روح کو تقویت دیتا ہے، اور اس کا نفس حیوانی دایات کے انسداد اور انقباض کے بعد روح کی قوت کے ساتھ ملائکہ کی صفات کا حامل ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں وہ جس قدر عبادات میں اخلاص و للہیت کا اظہار کرتا ہے، اس سے نفس بہت سی برائیوں اور بیماریوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔
हाजरीन व नाजरीन ग्रामी कदर, इंसानी नफ्स में हिर्सो लालच का दाहिया भी बदरजाए अथम पाया जाता है। इंसान खाने पीने की भी शदीद लालच और ज़रूरत रखता है। अगर इंसान ज़रूरत के लिए खाए तो वो कभी भी बीमार ना हो, मगर जब इंसान लालच करते हुए हद से ज़्यादा खाता है तो इसका मेहदा मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो जाता है। इंसान का मेहदा ही हर बीमारी का घर साबित होता है। खाने की ज़्यादती और खाने की कसरत पानी की कसरत का भी तकाजा करती है। यूं इंसान का पेट मुकम्मल तौर पर भर जाता है। ज्यादा खाना ज्यादा सोने का सबब बनता है, जिसकी बिना पर इंसान अपनी कीमती जिंदगी जाया करता है। अमले सोम इंसान के कसरते ताम के फेल को मुंजबित करता है और इसको इतदाल के साथ इंसानी हयात में कायम करता है। इसलिए बारी ताला ने कुरान हकीम में खाने और पीने में इतदाल की राह को इख्तियार करने का हुक्म देते हुए इरशाद फरमाया, कोलू वशरबू वला तुसरिफू, फरमाया खाओ पियो, इस अमल में हद से आगे न बढ़ो। हाजरीन व नाजरीन ग्रामी कदर, अमले सोम इंसान को हद से ज्यादा खाने और पीने से रोकता है। हद से ज्यादा खाना और पीना इंसान को बीमार करता है और एतदाल के साथ खाना और पीना इंसान को सेहतमंद रखता है। हाजरीन व नाजरीन ग्रामी कदर, हर इंसान पर जब कोई हालत तारी होती है तो उसी वक्त ही वो किसी हकीकत को जान सकता है। जब इंसान खुद कभी भूखा न रहा हो उसे भूख की हकीकत समझ नहीं आ सकती। किसी शख्स को प्यास की शिद्दत क्या है और पानी इंसानी जिंदगी के लिए कितना नागुज़ीर है और प्यास बुझाने के लिए इंसान क्या क्या जतन करता है, ये बात उसी को समझ आ सकती है जो मौसम गर्मा की शिद्दत में भी कभी प्यासा रहा हो। और अमले सोम इंसान को भूख का भी हकीकी एहसास दिलाता है और पानी की जरूरत व अहमियत को भी उसकी नस नस में महसूस कराता है। रोजे की यही हालत और यही कैफियत इंसान के अंदर दूसरे इंसानों के लिए हमदर्दी और खैर खाई के जज्बात पैदा करती है। वो भूखे लोगों की भूख को रोजे की वजह से अच्छी तरह महसूस करने लगता है। यूं माशरे के गुराबा, फुकरा, बेसहारा और मसाकीन अफराद की मदद व नुसरत करने लगता है। रोजा इंसान के पेट को कुछ भूख देकर इसकी फिक्र को अजीम बनाता है। यही वजह है हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने लखते जिगर को नसीहत करते हुए फरमाया, है नूरे नजर, जब तेरा पेट भर जाता है तो तुम्हारी सोच व विचार की सलाहियतें सो जाती हैं और तुम्हारी हिकमत व दानिश गुम हो जाती है और बहुत ज्यादा भरे हुए मैदे और पेट की वजह से तुम्हारे अज़ाए जिस्म इबादत इलाहिया में काहिली और सुस्ती महसूस करते हैं, हत्ता के इबादत से महरूम हो जाते हैं। हाजरीन व नाजरीन ग्रामी कदर, और अफा और सुलहा इबादत की लज्जत उस वक्त महसूस करते थे जब पेट में कुछ भूख होती थी। यही वजह है कि हजरत सुलेमान दुरानी बयान करते हैं, मुझे इबादत की शीरनी और मिठास उस वक्त नसीब होती है जब मेरी कमर मेरे पेट से मिली हुई होती है। इसी तरह एक हिकमत दां का कौल है, वो दवा जिसके साथ कोई मर्ज बाकी नहीं रहता है वो ये है कि तुम पेट भरकर कभी भी खाना न खाओ। हाजरीन व नाजरीन ग्रामी कदर, ये कौल दर हकीकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद से माखूज है जब मकूकस शाह मिस्र ने बतौर तोहफा एक हकीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भिजवाया था। आपने उससे फरमाया कि हम एक ऐसी कौम है जो सिर्फ और सिर्फ उस वक्त खाती है
جب انہیں بھوک لگتی ہے، اور جب فرمایا ہم کھانا کھا لیتے ہیں تو اس کھانے کو اپنے نفوس کا مالک نہیں بننے دیتے۔ اتنی بات سن کر وہ طبیب مقوقس شاہ مصر کی طرف واپس چلا گیا۔ اس نے مقوقس شاہ مصر سے جا کر کہا، ہے بادشاہ، آپ نے مجھے اس ہستی کی طرف بھیجا ہے جس نے ہماری ساری طب کو، میڈیکل سائنس کو 2 کلمات میں بیان کر دیا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، روزے میں بھوکا رہنے کا عمل انسان کو دل کی پاکیزگی عطا کرتا ہے اور عبادت کی لذت دیتا ہے اور مناجات کی حلاوت عطا کرتا ہے اور اس کے ذہن و قلب میں ذکر و فکر کی تاثیر پیدا کرتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، انسان کے وجود میں ایک عقل کی قوت ہے، دوسری نفس کی قوت ہے۔ فطرت کا تقاضا یہ ہے عقل کو نفس پر غلبہ اور تسلط حاصل رہے، عقل کی قوت کو غالب رکھنے اور نفس کی قوت کو مغلوب رکھنے کے لیے اسلام نے تزکیہ نفس کا حکم دیا ہے۔ تزکیہ نفس کے اصول کے لیے سب سے قابل ترجیح طریق عمل صوم ہے، جو کہ قد افلح من زکاہا کی منزل پر انسان کو پہنچاتا ہے اور نفس کو وقد خاب من دساہا کی خرابیوں اور بربادیوں سے بچاتا ہے۔ روزہ تزکیہ نفس کے ذریعے انسان کے اندر سب سے مضبوط قوت تقوی کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا لعلکم تتقون، روزہ اس لیے ہے کہ تاکہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ اس لیے تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے تاکہ تم متقی بن سکو۔ روزہ رکھنے سے انسان کو عاجزی اور مسکنت کی نعمت ملتی ہے، خدا تعالیٰ کے جلال اور اس کی قدرت پر نگاہ رہتی ہے۔ روزے سے چشم بصیرت کھلتی ہے، خیالات میں ترقی اور بلندی آتی ہے۔ روزہ انسان پر احقاق حق کا انکشاف کرتا ہے۔ روزہ انسان میں انسانیت کو فروغ دیتا ہے اور اس کے نفس کی درندگی اور بہیمیت سے اسے بچاتا ہے۔ اللہ کی قربت اور معرفت کی نعمتوں سے اسے نوازتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں انسان کو شکر گزار بندہ بناتا ہے۔ انسان کے دل میں دوسرے انسانوں کے لیے ہمدردی اور خیر خواہی کے احساسات اور جذبات پیدا کرتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، جس انسان نے کبھی زندگی میں بھوک نہ دیکھی ہو، کبھی زندگی میں پیاس محسوس نہ کی ہو، اسے معاشرے کے بھوکوں اور پیاسوں کا حال کبھی محسوس نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی وہ رب کی نعمتوں کی قدردانی کر سکتا ہے، اور نہ ہی صحیح معنوں میں اس کی نعمتوں پر شکر گزار ہو سکتا ہے۔ بھوک سے معدہ خالی ہوتا ہے، پیاس سے رگوں اور پٹھوں میں ناتوانی اور کمزوری آتی ہے۔ خود کو قصدن بھوکا اور پیاسا رکھ کر رب کی نعمتوں کی قدردانی روزے کی حالت ہی میں آتی ہے اور احساسات شکر گزاری پروان چڑھتے ہیں۔ اس لیے کھانا اور پینا ہر انسان کو مألوف اور مرغوب ہے۔ جب انسان اس سے محروم ہوتا ہے تو اس کی وقتی کمی شدت کے ساتھ محسوس کرتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، روزے سے انسان کے جسم اور روح کو تقویت ملتی ہے۔ اس اعتبار سے روزے سے قلت عقل و شرب سے واسطہ پڑتا ہے۔ اطباء کے نزدیک یہ عمل انسانی جسم کو صحت مند بناتا ہے، جبکہ روزے سے روح کو روحانی غذا ملتی ہے اور انسانی قلب کا تزکیہ اور تصفیہ ہوتا ہے۔ روزے کا عمل محبت الہی کی بہت بڑی نشانی ہے۔ جیسے کوئی شخص اپنی کسی محبوب چیز کے فراق اور اس کی جدائی میں، اس کی محبت میں کھانا پینا چھوڑ دے اور نفسانی خواہشات کو ترک کر دے تو اس کا یہ عمل محبت کی علامت ہے۔ اس لیے باری تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا الا الصوم انہ لی وانا اجزی بہ، فرمایا بندو روزہ صرف اور صرف میرے لیے ہے،
मेरी रजा की खातिर रोजा रखो और मैं ही इस रोजे की जजा और इसका अजर देने वाला हूँ। हाज़रीन व नाज़रीन ग्रामी कदर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजे के लिए ताजील इफ्तार की सुन्नत अता की है, ताखीर सहर की सीरत दी है, और ये इसलिए 2 हदों के वक्त का तायन कर दिया है ताकि रोजे का अमल हद इतदाल पर कायम रहे। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे की इब्तिदाई और इंतहाई अमली हद का तायन न करते तो बाज लोग मुमकिन है अपनी तबीयत तकवा और परहेजगारी की वजह से रोजे को इशा के वक्त के करीब इफ्तारी के लिए ले जाते और फिर इफ्तार करते, और इसी तरह वो अपनी सहरी के वक्त को सुबह सादिक पो फूटने से कबल ले जाते और इस हद सहर को मुकद्दम कर देते। फिर उनकी तकलीद में आम लोगों को तकलीफ व अजियत का सामना करना पड़ता। हाज़रीन व नाज़रीन ग्रामी कदर, इस्लाम दीन फितरत है और ये दीन सबसे ज्यादा इंसान की तबीयत और इसकी फितरत के तकाजों को जानता है। इसलिए रोजे की फर्जियत के लिए दिन के औकात को मुकर्रर किया है। रात के वक्त को भी तबा इंसान तर्के शहवात और लज्जात के लिए इसको इख्तियार करता है। अमूमन रात को हालते मनाम में सोने की हालत में होता है। अगर रोजे के लिए रात का वक्त मुख्तस कर दिया जाता फिर रोजा एक ऐसी इबादत बन जाता जिससे इंसान की शख्सियत को खातिर खा फवायद हासिल न होते और उसकी आदत अक्ल व शुर्ब पर कोई असर न पड़ता। ये खा पी कर सो जाता और फिर उठकर सारा दिन खाता पीता रहता। इस रोजे से इंसान की शख्सियत न बनती और इसके अंदर खुल्क बर्दाश्त और तहम्मुल न आता, मसाइब व आलाम को झेलना न आता, आसाइशों और राहतों को तर्क करना न आता, और इस हुक्म शरा के नताइज मुअस्सर अंदाज में हमारे सामने न आते। इसलिए रोजे को दिन के वक्त फर्ज किया गया है और इंसान के ताल्लुक बिल कुरान को मजबूत और मुस्तहकम करने के लिए क़ियामुल लैल में किरात और समाते कुरान को अपने नबी और अपने रसूल की सुन्नत सलातु तरावी की सूरत में बनाया है। हाज़रीन व नाज़रीन ग्रामी कदर, अब अबले सौम के बारे में जहन में ये सवाल पैदा होता है कि रोज़ों की तादाद 1 महीना ही क्यों मुकर्रर की है। रोज़े का मकसद तज़किया नफ्स और ज़ोदो वरा और तकवा और तहारत का असूल था। इसलिए जरूरी था कि इन मकासद के असूल के लिए इफरात व तफरीद से बालातर होकर एक मुकर्रर वक्त और मुद्दत का तायुन किया जाए और वो मुअय्यन मिकदार 1 महीने की रोजों के लिए मुकर्रर की है। कुरान नाज़िल तो एक रात लैलतुल कदर में हुआ है, मगर इस लैलतुल कदर की वजह से सारे महीने को खैर व बरकत का महीना बना दिया गया है। और इरशाद फरमाया शाहर रमज़ानिल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, नुज़ूल कुरान के बायस ये सारा महीना ही अल्लाह की रहमत और बरकत का बायस बन गया है। इसलिए सारे महीने की बरकतों और रहमतों को समेटने के लिए रोजा फर्ज कर दिया गया है। अगर रोजे की मिकदार 1 महीने से कम होती फिर दिन में से भी कुछ वक्त रोजे के लिए होता और बकिया वक्त दिन ही में से रोजे के लिए ना होता, जबकि रात के वक्त रोजा इंसानी आदत के खिलाफ है। रोजे में इंसान को अमूमी आदत से दूर करना मकसूद है, इसलिए रात का रोजा फर्ज न किया गया और दिन का रोजा इसलिए फर्ज किया गया कि ये एक मुनासिब मिकदार और अमूमी आदत के मुताबिक है। और दिन के रोजे में आंखें इस रोजे की शिद्दत की वजह से, भूख और प्यास की वजह से गड़ जाती हैं, नफ्स थक जाता है और ये मकसद 1 हफ्ते और 2 हफ्ते के रोजे से भी हासिल न हो सकता था। इसलिए पूरे 1 माह के रोजे मुकर्रर किए। रोजे का वक्त तुलूए फजर से लेकर गुरूब आफ्ताब तक का रखा है, इसलिए कि अरबों के यहाँ अमूमन इस मुद्दते वक्त को यौम कहते थे। रोजों के लिए 1 महीने की मिकदार
मुकर्रर करने की दूसरी वजह यह है कि रोज़ा इंसानी जिस्म से तमाम नफसानी जहरों को रफा करता है। रोज़ा इंसान के लिए तरियाक की हैसियत रखता है। रोज़े से बज़ाहिर इंसान की तबीयत को तकलीफ और अजियत होती है, इस बिना पर इस तकलीफ व अजियत नफ्स के लिए फितरत के मुताबिक रोज़े की मिकदार के लिए 1 महीना ही काफ़ी है, और ये मोतदिल मिकदार है जिसे शरीयत इस्लामिया ने राइज किया है। अगर रोज़े की मिकदार मजीद कम होती तो फिर खातिर खा इस रोज़े रखने का फ़ायदा ना होता, और ना ही इसकी मिकदार इस कदर ज़्यादा हो जाए कि इंसान के आज़ा में ज़ोफ़ ही ज़ोफ़ कमज़ोरी आने लगे और दिली फरत जाती रहे, नफ्स कमज़ोर पड़ जाए, तो फिर नफ्स की कमज़ोरी इंसान को अस्पताल का रास्ता दिखाती है। इसलिए 1 माह की मिकदार सोम ही मुनासिब और मोतदिल है। बिलाशुबा इंसानों में खाने पीने में कमी के भी 2 तरीके राइज रहे हैं। एक तो यह है कि हर कोई थोड़ा खाना खाए, मगर थोड़ा खाने की मिकदार में भी हर किसी की तबीयत के लिहाज से फर्क है। किसी का ज्यादा खाना भी उसकी तबीयत के हवाले से कम है, और किसी का अमूमी थोड़ा खाना भी उसके लिए बहुत ज्यादा है। और दूसरा तरीक यह है कि खाने के दरमियान फासला हो और वो मामूल से ज्यादा हो, और यही शरीयत में मोतबर है। तमाम सलीमुल फितरत लोग इस बात पर इत्तेफाक करते हैं कि हर रोज लोगों को कम खाने की तकलीफ नहीं दी जा सकती, ताकि इसके जरिए उनकी ईवानी सिर्फ मगलूब रहे और खाने पीने के दरमियान ये फासला इतनी ज्यादा देर का भी ना हो जिससे सब इंसानों की सेहत को नुकसान पहुंचे और उनकी हद बर्दाश्त से ये अमल बाहर हो जाए। मसलन 3 दिन तक का रोजा अगर रखने का हुक्म दे दिया जाता, 3 दिन तक भूखा और प्यासा रहने का हुक्म दिया जाता, तो ये अमर दीन फितरत के खिलाफ होता, और साल में 1 महीना मुसलसल भूखा प्यासा रहना सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक यही इंसानी फितरत के मुताबिक था, ताकि इंसानी तबीयत के अंदर इताअत और रियाजत का मादा फरोग पाए। हाज़रीन और नाज़रीन गिरामी कदर, इस सारी बहस का हासिल यही है कि इंसान पूरे दिन भूखा और प्यासा रहे, खा इसकी भूख और प्यास कितनी ही सख्त क्यों ना हो, यह अमल मुसलसल 1 माह तक जारी रखे इंसानी सेहत के कयाम और इस्तेकाम के लिए, और अल्लाह की रजा और खुशनुदी के इस अमल को सियाम रमजान कहते हैं। हाज़रीन और नाज़रीन गिरामी कदर, रोजे का मकसद सरासर तहजीब नफ्स इंसानी है, इसलिए कि ये अमूमी कानून के तहत सब अफराद माशरा पर यकबारगी एक ही वक्त में लाजिम होता है। ऐसा नहीं है कि हर शख्स अपनी मर्जी पर जब चाहे 1 माह के रोजे रख ले। इसलिए कुरान ने सराहतन ऐलान कर दिया, फमन शाहिदा मिनकुम शहरा फल यसुम हो, फरमाया जो इस महीने को पाले वो इसके रोजे रखे। और इससे इज्तिमाई माहौल की वजह से अमर बिल मारूफ को फरोग मिलेगा, जबकि नहीं अनिल मुनकर का इंसदाद होगा। इस्लाम के इस अजीम रुकन के कयाम में इस्तेहकाम आएगा। रोजे के इज्तिमाई माहौल की वजह से हर किसी के अंदर इसको अपनाने और इस पर अमल करने का दाइया पैदा होता है। इस हमले सोम पर पाबंदी करने से एक दूसरे के लिए अखलाकी मदद मिलती है। हर किसी के लिए इस पर अमल करने में आसानी मुयस्सर आती है। इस हमले सोम को अपनाने की हिम्मत पैदा होती है, और एक ही वक्त में सबके इस अमल को अदा करने से अल्लाह की रहमत का नज़ूल होता है और बामी इत्तेहाद व इत्तेफाक की फजा परवान चढ़ती है। इस महीने में रोजे रखने वाला खुद को अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक बनाता है, और नफ्स परस्ती की वजह से इस रोजे को तर्क करने वाला अल्लाह की लानत का खुद को मुस्तहिक बनाता है। हाज़रीन और नाज़रीन गिरामी कदर, इस माह मुक़द्दस की रातों को बारी ताला ने अहले ईमान की इबादत और रियाजत के लिए मुख्तस कर दिया है, और बतौर खास हर रात को सुन्नत रसूल के मुताबिक सलातुत तरावी
हम अदा करते हैं, जिसमें किराते कुरान, समाते कुरान की शहादत हासिल करते हैं। सलातुत तरावी के जरिए तभी ख्वाहिशों की कमाल दर्जे की मुखालफत की जाती है। इसलिए इफ्तारी के बाद इंसानी तबीयत दिन भर की मेहनत और मुशक्कत की वजह से इस्तराहत और आराम का तकाजा करती है। सलातुत तरावी ही वो इबादत है जो नफ्स की ख्वाहिश के बरक्स अदा की जाती है। सलातुत तरावी को रात की नमाज में रखा है, इसलिए अक्सर बरक़ात और अनवार इलाहिया का नज़ूल रात ही के वक्त होता है। इसलिए रमजान मुबारक का सबसे बड़ा तारुफ ये है कि ये अल्लाह की रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरतों के नज़ूल का महीना है। इसकी हर सात अपने अंदर खैर ही खैर रखती है। आदरीन और नादरीन ग्रामी कदर, इस माह मुक़द्दस के आखिरी अशरा को बारी ताला ने अहले ईमान के एतकाफ के लिए मुख्तस कर दिया है। एतकाफ आकिफा से है, जिसके माना रोकने और मना करने के हैं। रोजादार तो पहले ही रोजे की वजह से बहुत सी चीजों से रुके हुए होता है, मुतअद्दिद चीजों को छोड़े हुए होता है। एतकाफ में वो मजीद बहुत सी चीजों से खुद को रोक लेता है और छोड़ देता है, और खुद को अल्लाह की खातिर तमाम हवाइजे दुनियावी और अगराजे नफसानी से रोक लेता है। इबादत इलाहिया की नीयत से मस्जिद में खुद को रोक कर अपने मौला के दर पर खुद को गिरा देता है। इस फेल को इस्लाम में एतकाफ कहते हैं। सुनन इब्न माजा में हजरत उबई बिन काब की रवायत के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में एतकाफ बैठा करते थे। एतकाफ एक रोजेदार और एक मुहिब सादिक का एक ऐसा अमल और मुहिबाना रंग है कि वो खुद को अपने महबूब हकीकी के दर पर एतकाफ की सूरत में बहालत तजर्रो और आहोजारी गिरा देता है। वो खुद को 10 रोज के लिए अल्लाह की बारगाह से कुल्लियतन मुक़य्यद और वाबस्ता कर लेता है, और हर एक खल्क और हर एक ताल्लुक से कट जाता है और उसके दर का मंगता और सवाली बन जाता है। 10 रोज उसके दर पर बैठकर अपनी हाजत तलबी, अपनी मुराद बरारी के लिए दुआएं करता है, इल्तिजाएं करता है, कभी क़याम करता है, कभी रुकू करता है, कभी सजदे करता है, कभी अपने हाथ दुआ के लिए उठा देता है, कभी उसके कलाम कुरान के जरिए से उससे हम कलाम होता है, कभी तस्बीह इस्तिग़फ़ार करता है, कभी तस्बीह दुरूद पढ़ता है, कभी सलातुत तस्बीह पढ़ता है, कभी उसकी याद में तड़पता है, कभी आंसू बहाता है, कभी हु के नगमे अलापता है, कभी अल्लाह अल्लाह का। मोटापे में कमी आती है, इंसान के जिस्म से इजाफी चर्बी का खात्मा होता है, और इंसानी जिस्म में कुव्वत मुदाफियत रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाती है। इंसान बुरे ख्यालात से महफूज हो जाता है, ज़हन में रूहानी बालिदगी पैदा होती है, और जिगर के इर्द गिर्द जमा शुदा चर्बी में कमी आती है, और इंसानी जिस्म में पलने और बढ़ने वाले कैंसर का खात्मा हो जाता है। असाबी अमराज में कमी आने लगती है, जिस्म में जलन की बीमारी कम हो जाती है। रोजे की भूख भी इंसानी जिस्म को बेपनाह फायदा और नफा देती है। आज़रीन और नाज़रीन ग्रामी कदर, रोजे के रूहानी फवायद पर जब हम नजर करते हैं, रोजा रखने से इंसान के जाहिर और बातन की गलाजतें दूर होती हैं, और रोजे के जरिए इंसान के रूहानी अमराज खत्म होते हैं। रोजा इंसान की रूह को तरोताजगी देता है। रोजे का अमल इंसान को गुनाहों और बुराइयों से रोक देता है, और इंसान के जज्बात और ख्यालात में पाकीज़गी पैदा करता है। रोजा इंसान के दिल में सुकून और इत्मीनान की कैफियत को जन्म देता है। रोजा हमारी रूह की ग़िज़ा है। आज जदीद मेडिकल साइंस में डॉक्टर हज़रात लोगों को भूखा रहने के फवायद बता रहे हैं, और पूरे साल में एक माह फाका कशी की जानिब माइल कर रहे हैं। इसलिए भूख भी बहुत से अमराज का बजाते खुद एक मुअस्सर इलाज है। माहिरीन नफ्सियात कहते हैं रोजे से इंसान के दिमागी और नफ्सियाती मसाइल खत्म हो जाते हैं। रमजान मुबारक मुसलमानों के रुजू इलल
कुरान और रुजू इल्लाह के बहुत ज़्यादा रुझान की वजह से इनमें इबादत गुजारी बढ़ जाती है। इबादत के लिए तहारत और वुजू का अमल इनको नाक, कान और गले के अमराज से महफूज करता है और मुसलसल फाका भी जिस्म के लिए एक तवानाई का जरिया बनता है। आम हालात में भी सिर्फ सुबह और शाम खाने वाले ही सेहतमंद रहते हैं। मुसलसल खाना और बसियार खोरी करना इंसानी सेहत को तबाह व बर्बाद करना है। इंसान खा खा कर अपने जिस्म को सुस्त कर लेता है, खुद को काहिल और गाफिल बना लेता है। इंसानी जिस्म को मुसलसल मुतहर्रक और फ़ाल रखने का मुअस्सर तरीका यह है कि इसको कम, मुतवाज़न और मुतदिल खुराक दी जाए। इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा खुराक इंसानी जिस्म को नुकसान पहुँचाती है। सेहतमंद इंसानी ज़िंदगी के लिए माहिरीन तिब ये मशवरा देते हैं कि 3 असूल सेहत अपनी ज़िंदगी में अपना लो, जिसके नतीजे में तुम्हारे जिस्म के जहरीले मवाद खारिज हो जाएंगे और ये असूल अमाल तुम्हारे जिस्म को तेज बढ़ापे के अमल से रोक देंगे। पहला असूल यह है कि अपने जिस्म को खूब मेहनत में लगाओ। दूसरा असूल यह है कि बहुत ज्यादा जिस्मानी वर्जिश को अपनी जिंदगी की पहचान बनाओ। और तीसरा असूल यह है कि जो गुज़ा तुमको पसंद हो वही खाओ, लेकिन हर महीने में कम अज कम एक दिन फाका जरूर करो। रोजा इंसानी सेहत को कायम रखने के लिए एक ऐसे ऑपरेशन की हैसियत रखता है जिसमें आलात जराही के इस्तेमाल की कतन जरूरत नहीं पड़ती। रोजा इंसान को नरम मिजाज, एतदाल पसंद और एक मिसाली इंसान बनाता है। इन सारे फवायद से यह बात आया होती है कि रोजा किसी भी एतबार से इंसान के लिए नुकसानदेह नहीं है, बल्कि सरासर इसमें फायदा ही फायदा है। इसमें जहां रब के हुक्म की फर्माबरदारी है वहां इंसानी सेहत की बाजियाबी और कामयाबी और बहाली भी है। इंसानी सेहत के हवाले से जदीद तरीन तहकीक ये बताती है कि हर महीने में 3 रोजे इंसान के मुदाफती निज़ाम को बहुत ज़्यादा मजबूत करते हैं और यही मुदाफती निज़ाम की मजबूती ही हमें बेशुमार अमराज से बचाती है। और इन्हीं 3 रोज़ों को सीरतुन नबी में अयाम 20 के रोज़े कहा जाता है। हाज़रीन और नाज़रीन ग्रामी कदर, रोज़े के इन मुताद्दिद और बेशुमार फवाइद से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि कम खाकर भूखा रहकर भी इंसान अपने जिस्म को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा सकता है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सेहतमंद रख सकता है। रोज़े से इंसान के निज़ाम हज़म और मरकज़ी असबी निज़ाम को मुकम्मल तौर पर नफ्सियाती सुकून मिलता है और रोज़े के ज़रिए इंसान को अपने मुदाफ़ती निज़ाम के नुकसानदेह, नाकारा और गैर फ़ाल हिस्सों से निजात मिल जाती है। रोज़ा इंसान के जिस्म में मौजूद LDL जो ख़राब कोलेस्ट्रॉल की हैसियत रखता है उसको ये जला देता है और उसके लिए तवानाई का बायस बनता है। रोज़ा इंसान को बीमारियों से बचाकर इसकी उम्र में इजाफे का बायस बनता है। माहिरीन तिब कहते हैं कि रोज़ा एक ऐसा अमल है जो इंसान को हर एतबार से उसके लिए मुफीद होता है और इसलिए माहिरीन नफ्सियात और माहिरीन तिब कहते हैं कि कम खाना ही और फाका करना ही ये इंसान के लिए सबसे ज़्यादा मौसर है। हाज़रीन ग्रामी कदर, आज इस कम खाने के हवाले से दुनिया भर के अंदर जो है एक फास्टिंग क्लिनिक्स का जाल हमें बिछा हुआ नज़र आता है। अगर हम इंटरनेट की दुनिया में जाएं तो इसके बेशुमार हमें मराकज़ नज़र आते हैं और आज दुनिया भर में इंटरनेट पर फास्टिंग क्लिनिक्स की एक लंबी फहरिस्त हमें मुयस्सर आती है। एक लंबी फहरिस्त हमें मुयस्सर आती है। तो ये फास्टिंग का अमल इंसान को कैंसर से भी महफूज करता है। और कैंसर की वजह क्या है? हमारे जिस्म में जब हम बहुत ज़्यादा खुराक इस्तेमाल करते हैं और जो ज़रूरत से ज़ायद होती है वही हमारे लिए कैंसर का बायस बन जाती है। तो रोज़ा रखने की वजह से हमारे जिस्म के नाकारा खुलिये खुद ब खुद ख़त्म होने लगते हैं और सेहतमंद इंसानों में भी इस बीमारी के इम्कानात फास्टिंग की वजह से कम हो जाते हैं। रोज़ा
فاسٹنگ میں انسان دانستہ طور پر از خود اپنی مرضی سے اللہ کی رضا کی خاطر ایک مقررہ وقت تک کے لیے خود کو بھوکا اور پیاسا رکھتا ہے۔ فاسٹنگ کا عمل مختلف مذاہب میں صدیوں سے جاری و ساری ہے۔ اسلام نے 1400 سال قبل روزوں کی صورت میں فاسٹنگ کو ایک خوبصورت شکل دے کر ہر مسلمان پر اسے فرض کیا ہے۔ دنیا بھر کے طبی ماہرین، معالجین اور سائنسدان فاسٹنگ کو انسان کے بہت سے امراض کا بہترین علاج قرار دے رہے ہیں۔ دنیا بھر میں فاسٹنگ کے عمل پر ریسرچ ہو رہی ہے۔ اس تحقیق کے نتیجے میں یہ معلوم کیا جا رہا ہے کہ انسان کس حد تک خوراک سے محرومی کا دباؤ برداشت کر سکتا ہے۔ آج دنیا کے بعض ممالک جیسے سائبیریا نے فاسٹنگ کو اپنی پبلک ہیلتھ پالیسی میں شمار کر لیا ہے، اور یہ بات بھی حقیقت ہے۔ آج انسانی جسم کو لاحق بہت سی بیماریاں تہذیب نوح کا تحفہ ہیں، جن سے چھٹکارا صدیوں سے جاری انسانی عمل فاسٹنگ اور روزے میں پنہا ہے۔ یقیناً طبی طور پر فاسٹنگ کا عمل شروع کرنے کے ابتدائی دنوں میں بھوک اور پیاس بہت ستاتی ہے، بہت اذیت دیتی ہے۔ رفتہ رفتہ انسانی جسم اس سے ہم آہنگ ہو جاتا ہے، اور فاسٹنگ کے عمل سے جسم سے زہریلے اور فاسد مادے ختم ہو جاتے ہیں۔ فاسٹنگ کے دوران گلوکوز لیول، کولیسٹرول، بلڈ شوگر اور انسولین کے لیول میں انتہائی مثبت تبدیلیاں آتی ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، آج دنیا بھر میں انٹرنیٹ پر فاسٹنگ کلینکس کے ایک لمبے فہرست ہمیں مل جاتی ہے، جو آج خود انسان کو بھوکا پیاسا رکھ کر فاسٹنگ کے ذریعے اس کے مختلف امراض، موٹاپے، بلڈ پریشر، امراض قلب، شوگر اور دیگر متعدد امراض کا علاج تجویز کر رہی ہے۔ دنیا بھر کے ماہرین طب اس بات پر متفق ہے کہ جسم کی اندرونی صفائی کے لیے، زہریلی مادوں کے اخراج کے لیے اور معدے اور جگر کے آرام کے لیے فاسٹنگ روزے سے بہتر کوئی طریقے علاج نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ باری تعالیٰ نے انسانی جسم کے دفاعی نظام کو حیرت انگیز حد تک از خود شفا یابی کی بے پناہ صلاحیتوں سے بھی نوازا ہوا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے انسانی جسم کے لیے کم کھانا اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا زیادہ خطرناک زیادہ کھانا ہے، اور یہ خوفناک عمل ہے جو ہم اختیار کرتے ہیں۔ زیادہ کھانا کھا کر خود کو بیماریوں کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، انسان جو زیادہ کھانا کھاتا ہے، اطباء کی نگاہ میں اس کے لیے یہ مثال بیان کی جاتی ہے۔ اطباء کہتے ہیں زیادہ کھانے والا اپنے دانتوں سے اپنی قبر کو کھود رہا ہوتا ہے۔ آج کے جدید تصور فاسٹنگ کو اسلام نے 1400 سال قبل روزے کا نام دیا ہے۔ روزے کا عمل آج انسانی صحت اور سلامتی کے حوالے سے از خود اسلام کی حقانیت اور صداقت کی ایک واضح برہان ہے۔ دنیا بھر میں فاسٹنگ کے لیے عمل صوم انسان کا بیماریوں سے حفاظت اور شفا یابی کا ایک خوبصورت اور مؤثر وسیلہ ہے، اور اس روزے کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ روزے کی حقیقت یہی ہے کہ جہاں ہمارے نفس کو یہ روزہ بیماریوں سے بچاتا ہے، وہیں یہ ہمارے نفس کو برائیوں سے بھی بچاتا ہے، ان سے بھی محفوظ کرتا ہے۔ رمضان اور قرآن کا ہمارے نفس امارہ کے لیے یہی پیغام ہے: اے نفس امارہ مجھے لغزش پہ آمادہ نہ کر، اے نفس امارہ مجھے لغزش پہ آمادہ نہ کر، تیری ہر دعوت سے ہے انکار، تیری ہر دعوت سے ہے انکار، اس لیے کہ میں روزے سے ہوں، اس لیے کہ میں روزے سے ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔